Welcome to Muhim tutorial. I am Muhim. Today we are going to complete that exercise number 11.2 trigonometry. In the previous class we learned up to question number 3. Today we are doing question number 4. Question number 4 is it right to say cos 60 plus cos 30 is equal to cos 60 cos 30 minus sin 60 sin 30? So we have to prove that LHS is equal to RHS. Is it right or wrong? We have to prove that. So let's see. First is is it right to say cos 60 plus 30? Question number 4. Is it right to say cos 60 degrees plus 30 degrees? Cos 60 degrees plus 30 degrees is equal to cos 60 cos 30 minus sin 60 sin 30. Cos 60 cos 30 minus sin 60 sin 30. We have to prove. LHS is equal to RHS, we have to prove. So let's take, first we are taking the LHS. LHS is cos LHS cos 60 degree plus 30 degrees is equal to, it is cos 90 degree. Cos 90 degree. The value of cos 90 degree. The value of cos 90 degree, yesterday we did that, like this question. The value of cos 90 degree is 0 in our table. The value of cos 90 degree is 0. Then we will take RHS. RHS is cos 60. RHS is cos 60 degree, cos 30 degree minus sin 60 degree sin 30 degree. So we have to take all the values. So what are the values? Cos 60 is 1 by 2 and cos 30 is root 3 by 2. Cos 60 is 1 by 2 and cos 60 is root 3 by 2. As sin 60 is root 3 by 2 and sin 30 is 1 by 2. Sin 60 is root 3 by 2 and sin 30 is 1 by 2. So these become root 3 ones are root 3 by 4 minus root 3 ones are root 3 by 4. So take 4 as a LCM and root 3 minus root 3 is equal to, this is root 3 minus root 3 is 0. 0 by 4 is equal to 0 is the answer. Is equal to 0 is the answer. So we got LHS 0, RHS 0. So both are equal. LHS is equal to RHS. We prove that. LHS is equal to RHS. We prove that. The next question, question number 5. In the right angle triangle PQR, right angle at Q, one right angle triangle is there. Question number 5. A right angle triangle is there and it is right angle at
he set right angle at Q, right angle triangle, right angle at Q, and PQ is 6 centimeter and RPQ is 60 degree. PQ is, so we will take P here, QR. PQ is 6 centimeter and angle PRPQ is 60. Determine the length of QR and PR. So RPQ, here it is given angle RPQ is 60 degree. That means this angle is given 60 degree. This angle is given 60 degree. We have to find QR and PR. We have to find length of QR and length of PR. These two we have to find out. That means this one and this one we have to find out. So we already know that here it is given adjacent. एडजेसेंट यहाँ पे दे दिया, तो अपन क्यू आर मालूम करना है तो अपने को अपोजिट मालूम करना पड़ता, और पी आर मालूम करना है तो हाइपोटेनस मालूम करना पड़ता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन क्यू आर मालूम करेंगे। क्यू आर मालूम करने के लिए एडजेसेंट बाई अपोजिट, अपोजिट बाई एडजेसेंट। अपोजिट बाई एडजेसेंट किस में है भाई, टैन में है, तो इजीली हम लोग टैन ले लेंगे। टैन पी इज इक्वल टू opposite by adjacent, opposite by adjacent। opposite क्या है भाई, पी आर, सॉरी क्यू आर। अपोजिट क्या है, क्यू आर, बाय एडजेसेंट क्या है, पी क्यू। तो क्यू आर वी डोंट हैव। अच्छा, टैन पी की वैल्यू क्या है, 60 डिग्रीज। So tan 60 degrees is √3 and QR we don't know, and sorry, QR we don't know, PQ we have 6, so take 1 cross multiplication, QR into 1 QR and 6 into √3, 6 √3, we got the QR value, we got the QR value. Then we have to find out PR. So for PR, this is the PR, this is the adjacent, this is the adjacent and this is hypotenuse. तो adjacent by hypotenuse किस में है भाई, adjacent by hypotenuse cos में है, तो cos P is equal to adjacent by hypotenuse, तो cos 60 डिग्रीज लेना। 60 डिग्रीज इज इक्वल टू एडजेसेंट क्या है, क्यू पी है, पी क्यू है, एंड हाइपोटेनस क्या है, पी आर है, हाइपोटेनस पी आर। तो cos 60 की वैल्यू क्या है, अभी जस्ट बिफोर अपन ये क्वेश्चन में लिखे थे cos 60 की वैल्यू, यहाँ पे cos 60 इज इक्वल टू 1/2, cos 60 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे, 1/2 लिखे थे। तो 1/2 लिखो, 1/2 इज इक्वल टू पी क्यू अपने पास कितना है भाई, 6 है, और पी आर कितना है भाई, वी हैव टू फाइंड। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो पी आर इंटू 1, पी आर और इज इक्वल टू 6 इंटू 2, 12। तो पी आर का वैल्यू आया अपने को 12। तो इस तरह जो है इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई टैन पी लेके अपन क्यू आर मालूम करें 6√3 एंड कॉस पी लेके हम लोग पी आर मालूम करें, पी आर इज इक्वल टू 12। वेरी इजीली अपने को पता चल गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 वी आर गोइंग टू डू। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ट्रायंगल XYZ राइट एंगल इज एट Y, राइट एंगल दिया है, एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है और राइट एंगल एट वाई, ये वाई दे दिया, मतलब ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो क्या बोला भाई, एक्स वाई जेड, वाई जेड इज एक्स, वाई जेड इज एक्स, ही सेड वाई जेड इज एक्स, स्मॉल एक्स, and xz is 2x, xz is 2x, small 2x, and then determine angle yxz. We have to find out angle yxz and angle yzx, angle yzx. These two angles we have to find. These two angles we have to find. That means yxz बोले तो ये एंगल फाइंड आउट करना, पहले ये एंगल फाइंड आउट करना। तो देखो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए अपने पास क्या है भाई, अपोजिट है और हाइपोटेनस है, अपोजिट है, हाइपोटेनस है। तो ठीक है, अपन क्या है, अपोजिट बाई हाइपोटेनस भी लगा लेके अपन ये एंगल मालूम कर ले सकते, लेकिन अपन क्या करेंगे, अपने को फिर ये वाई जेड एक्स मालूम करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ जाए, तो अपन पहले ये मालूम कर लेंगे कि क्या है, राइट, ये कितना होगा वो मालूम कर लेंगे। उसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली, लेकिन फिर भी हम लोग मालूम कर लेते हैं कि ये कितना है, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या है, पाइथागोरस का थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता भाई, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि भाई हाइपोटेनस क्या है, एक्स जेड है, एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट क्या है भाई, वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो एक्स जेड अपने पास 2x है, 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अपने पास क्या है भाई, वाई जेड कितना है, एक्स स्क्वायर है, वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड अपने पास नहीं है, एक्स वाई अपने पास नहीं है, एक्स वाई स्क्वायर अपने पास नहीं है। तो ये क्या हो गया, 2 का 4 हो गया, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई होल स्क्वायर, एक्स वाई होल स्क्वायर। इसको उधर भेज दो, क्या हो जाता, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता, 4x में से 1x माइनस हो गया तो 3x स्क्वायर हो जाता, इज इक्वल टू एक्स वाई होल स्क्वायर हो गया। इसका रूट निकालो, दोनों का रूट, स्क्वायर रूट में निकाले तो क्या होता, ये √3 विल बी एज इट इज एंड ये एक्स स्क्वायर इज एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई √3 x. This x is not under root, right? This x is not under root. So we got the 3 values. Now we can easily find out whatever the values we want. तो देखो easily सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगल एक्स वाई जेड फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स सॉरी वाई एक्स जेड, दिस एंगल, राइट। तो हम लोग साइन से ही जाएंगे, इट इज़ बेटर टू गो, राइट, साइन से जाना इज बेटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन से ही जाएंगे। तो साइन से अपन गए समझो, तो अपन वैल्यूज़ अभी थोड़ी देर पहले अपने को मालूम हुए थे, तो हम लोग देख लेंगे क्या करना है, साइन। तो साइन एंगल
y x z इज इक्वल टू, साइन लिए तो क्या होता भाई, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट बाय हाइपोटेनस बोले तो क्या है भाई, अपोजिट क्या है, वाई जेड है, हाइपोटेनस क्या है, एक्स जेड है। तो वाई जेड कितना है भाई, एक्स है, और एक्स जेड कितना है भाई, 2x है, एक्स एक्स कैंसल, तो ये हो गया 1/2। तो साइन की वैल्यू आई 1/2। तो साइन जस्ट बिफोर अपन 1/2 साइन किस में लिखे थे भाई, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता। तो अब ये क्या है, ये पूरा तो साइन वाई एक्स जेड साइन एंगल वाई एक्स जेड, ये क्या हो गया, ये वैल्यू लिख दिए। तो एंगल वाई एक्स जेड साइन एंगल वाई एक्स जेड, तो एंगल वाई एक्स जेड इज इक्वल टू 30 डिग्री हुआ। तो ऑलरेडी जो है अपने को मालूम है कि भाई साइन में 1/2 की वैल्यू 30 डिग्रीज है, तो अपन क्या करें 30 डिग्रीज बोल के लिख दिए। अब नेक्स्ट अपने को मालूम करना है, नेक्स्ट ये क्या है, वाई जेड एक्स मीन्स दिस एंगल, वाई जेड एक्स मीन्स दिस एंगल वी हैव टू फाइंड। इसको मैं रब कर देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें भी अपन इसको लिए बगैर भी मालूम कर सकते, राइट, इसको लिए बगैर भी हम मालूम कर ले सकते, ये जस्ट नहीं करे तो भी चलता, नो नीड ऑफ दिस। तो देखो दिस इज एडजेसेंट एंड दिस इज हाइपोटेनस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस किस में है भाई, अगेन अब अपन क्या कर रहे थे, अपोजिट बाय हाइपोटेनस साइन में था, तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, ये एंगल के लिए ये एडजेसेंट है, और ये एंगल ये हाइपोटेनस तो कॉमन बात है। तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस किस में होता, कॉस में होता। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, यहाँ पे कॉस एंगल वाई जेड एक्स इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस ले लिया मैं, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो क्या हो गया, कॉस एंगल वाई जेड एक्स इज इक्वल टू, एडजेसेंट क्या है भाई, वाई जेड है, और हाइपोटेनस क्या है, एक्स जेड है। तो कॉस वाई जेड एक्स इज इक्वल टू, वाई जेड की वैल्यू क्या है, एक्स है, और जेड एक्स की वैल्यू क्या है, 2x है। अगेन दिस कैंसल दिस कैंसल, तो अब क्या बचा भाई, एंगल वाई जेड एक्स इज इक्वल टू 1/2, वी गॉट द वैल्यू 1/2, कॉस एंगल वाई जेड एक्स इज इक्वल टू 1/2, वी गॉट द वैल्यू। अब ये 1/2 का वैल्यू कितना होता भाई, कॉस में 1/2 कहाँ था, अपन इससे पहले पढ़े थे, कॉस में 1/2 कॉस 60 होता। तो ये अपन इसका वैल्यू लिख लिए, एंगल वाई जेड एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो अपने को एक आ गया 30 डिग्री, एक आ गया 60 डिग्री, एक आ गया 30 डिग्री वाई जेड एक्स, एंड क्या था भाई क्वेश्चन नंबर 6। तो अपने को एंगल आ गया 60 एंड 30, 60 एंड 30, तो 60 एंड 30 जो है अपन एंगल मालूम कर लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज next question 7th, is it right to say that sin A plus B is equal to sin A plus sin B? Justify your answer. So we have to justify that RHS is equal to LHS or not. So we have to see, we will see that
here he just say sin a plus b is equal to sin a plus sin b. Seventh question, sin a plus b, sin a plus b is equal to sin a plus sin b. Is it right to say that LHS is equal to RHS or not? So first we will take LHS. LHS क्या है भाई? साइन, अच्छा LHS लेने से पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट सपोज क्या कर रहे हैं अपन, A इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड B इज इक्वल टू 60 डिग्री ले लें. Let A is equal to 30 degree, B is equal to 60 degree. So LHS sin A plus B. So sin A value I took 30 degree, B value is 60 degree. So it will be sin 90 degree. तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है भाई? साइन 90 डिग्री की वैल्यू अभी हम लोग जो है थोड़ी देर पहले करे थे, साइन 90 डिग्री की वैल्यू है 1. साइन 90 डिग्री की वैल्यू है 1. अब उसके बाद क्या करेंगे अपन, ये ले लेंगे RHS. RHS क्या है? साइन A प्लस साइन B. तो साइन A बोले तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन B मीन्स साइन 60 डिग्री. साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2 है. और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? √3/2 है. ये 1/2 है, ये √3/2 है. तो ये क्या हो जाएगा भाई? इसका अगर अपन एलसीएम निकाल लिए समझो, तो ये 2 एलसीएम आ गया और ये 1 प्लस √3 हो गया. तो इसकी कोई वैल्यू नहीं निकलती. 1 प्लस √3 प्लस वट एवर इट मे बी 1 प्लस √3/2 की वैल्यू जो है अपने को नहीं निकलती. तो अपन क्या बोल सकते हैं कि हियर LHS इज 1, RHS इज 1 प्लस √3/2. सो LHS is not equal to RHS. LHS is not equal to RHS. LHS is not equal to RHS. So up to here this exercise is over. Next I am going to make a reel or that shows you how to easily get the values chart, how to make it, वैल्यूज़ का चार्ट कैसा बनाना है ये साइन कॉस के, उसको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा. नेक्स्ट वीडियो मीन्स नेक्स्ट शॉर्ट में मैं बताऊंगा आपको एकदम इजी वे में कैसा आपको वैल्यूज़ मालूम होते हैं. तो तब तक के लिए सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.